everywhere where we have audiences following us. So you can very well look at that recording over again, and feel free to pass it on in your entrepreneur circles. Also, when the interview begins, please feel free to take the speaker view, which is a toggle button right on the top right corner. That will help you just keep seeing the speakers as they speak and not take the gallery view. So leave that to you guys. All right, coming to the introductions. Let me quickly introduce to you Hardik Harsora. He is my co-director. We are co-founders, started FX way back in 2009, and then formally incepted our company FX Business Solutions Private Limited in 2011. We are a management consulting company and help organizations, small, medium-sized organizations with growth planning, performance management, and setting up systems and processes across all departments. To tell you more about Hardik, he comes from the excellence of process. He comes from the background of process excellence, rather, having certified and having his expertise in methodologies which you may not have heard of. Some of these are Lean, Kaizen, COPC, TQM, and ISO, which is more popular in India, but unfortunately used only for certification purposes. So these are our practices. Our expertise lies here. Hardik has a strong corporate background also. He served some top tier corporates in the past, like Dell, Chrysler Automotive, Fidelity. He was a consulting head at Fidelity. Then there was 3, Vodafone, Crazy Johns. Some of these are Australian brands. Having done the corporate piece very well, and then we decided to start FX, like I said, in 2009. It has been a fantastic journey, a lot of adventure, a lot of learning. On the way, we realized that small and medium-sized enterprises in India have a very different way of working. That's when Hardik, with all his experience and whatever he knows, he put all of that together to bring about Propel for you. Today, Propel is a very, very structured methodology of its own. Like I just mentioned, all the methods that we've been trained and certified on. Propel is by itself now a structured method, which we use for our consulting, coaching, and training. Hardik has been solely focused and committed to Propel as a method. Today, very confidently, over the few years that we have kind of introduced Propel. By far in India, in our humble experience and knowledge, there is no other company which has a very structured method of consulting for a business to scale by design rather than by chance. So that's Hardik for you. He's trained about 10,000 entrepreneurs so far. He loves to interact, talk to entrepreneurs all the time. As a leader, internally, all of us team, he's been successfully, of course, been able to scale this to a good extent. We have a team of consultants today. And he's a very, very approachable, affable person, loves to be focused on his fitness of the late years. He's been very, very focused. Then team can reach out to him, and he loves to brainstorm, get ideas from the team, loves to give them directions whenever they ask for. And well, I can go on and on. So that's Hardik Harsora for you, ladies and gentlemen. And of course, without any further delay, I would love to welcome Shreyas Khatri, our speaker of the day. Shreyas, Shreyas, can we have you on, and I think if everybody can get yourself on the speaker view, then we can see Shreyas. And it's the same guy that you saw in the marketing creative. It's just his COVID avatar right now. So Shreyas, can you just say hi so that everybody can see where you are? Yeah, say hi, because yeah. Hello everyone. Yeah. Wonderful. Thank you, Shreyas. So great to have you on board, Shreyas. For a quick formal introduction for Shreyas Khatri, of course, while I do the formal introduction, we must say that we've personally worked with Shreyas on our website, on our whole social media engagement, and he's done an absolutely exceptional job. So we love his work. Having said that, Shreyas Khatri is a founder of Media Tree, a digital marketing agency. They help customers find their customers by implementing customized digital marketing strategies to suit their unique business needs while maximizing ROI, which is return on investment. With 14 years of experience in the internet industry,
He has helped 200 plus businesses of all sizes, from multinational MNCs to solopreneurs across industry and service verticals, to establish and fortify their online presence. The focus is always on providing positive return on investment, which is ROI, sustainable, predictable, and cost-effective solutions to achieve clients' short-term and long-term goals. With a varied mix of skill sets, including helping customers identify their most profitable customer, product, service markets, quantifying demand, understanding buying behavior, persuasive content creation, and analytics, enables him to provide a holistic solution. Their services have helped customers bring a new perspective to the table, transform the way they look at digital, the way they do business, and have opened up a whole new world of possibilities. And every word of whatever I just read, we can personally, Hardik and I can both personally vouch that he's done a fantastic job. So the evening is all yours, ladies and gentlemen. Thank you again for being so patiently listening to me. And Hardik and Shreyas, over to you guys. Thank you very much. Now, again, as Fauzia mentioned, I would not like to see gray screens and white fonts. Anybody who's attending these webinars, I've been making the same request. Ab to main bhi bore ho gaya hu. You guys are really beautiful. Trust me on that. Show me your face. Come on, fast. I can see so many people who are attending for the second time. So many people that I can recognize by the name. Abha Shroff, I want to see you. Ajay Ajmera, I want to see you. Parag Mehta, I want to see you. Parag, we cannot not see you. Want to see you. Ashok ji, Ashok Shirur, please, let us see you. Ashok ji, are you here? Gomti, we want to see you. Vinod Khajanchi, we want to see you. Chetan Mashruwala, we want to see you. Come on, get your cams on. I trust the fact that you guys are beautiful. Please trust your own self. The gray screen doesn't deserve attention. Your face does. Abha, I see so many known people. So I'm going to call out. Yeah, I see. Ajay ji is here. Ajay ji is on already. Welcome. Murtuza bhai, I think you have a lot of dark area that you're sitting around. Get light and get brightness in your life. Switch on the tube light because you're going to learn a lot. Thirumal ji, how are you? I see you after a long time. Your son is looking really handsome. So welcome, are you. Welcome to the session. So with all of you guys here, and it's always nice to have you people here. बहुत सारे webinars में we have discussed the fact. And if you guys are not on speaker view right now, please get on a speaker view. Otherwise, you wouldn't know because screens change होते रहेंगे. You won't know who's speaking and where is he. आवाज कहाँ से आ रहा है. So if you get on the speaker view, then every time Shreyas talks, you will be able to see Shreyas. And he's a handsome guy, by the way. I took extra efforts to look sharper, but now he's got his COVID look, which is far more sharper. Same guy again that you saw in the creative. So बहुत सारे webinars में मैंने सुना everybody, and I was also saying कि हमको online जाना चाहिए. In fact, there is a mega activity that is on at my office. I'm not going to talk about it right now. To get businesses to really adopt this new way of life. But online जाना चाहिए सब लोग बोल तो रहे हैं, but we don't want to. We are not the kind of people who would want to say and not get you the solution. So here it is. The guy that we trust the maximum. He has handled corporate accounts, and the kind of corporate accounts that he's held, they are big four consulting companies. I can tell you it's not easy to handle accounts of the kind that he has managed. So complete faith on him. I'm not trying to sell him. You will know what he brings to the table as we speak along. So I would expect all of you guys to keep the notepad ready. So whenever the question is going on and you think you have a question, put it up in the chat box that's there just below on the Zoom call. I don't think मेरे को बताने की ज़रूरत है because by now you guys are like zombies, right? Sorry, zombies. If you relate to that term, how many of you are zombies? Put a thumbs up. I am a zombie. Put a thumbs up and show us zombie. Thumbs up यार उधर बाजू में reaction button भी है, वो भी आपको अभी तक तो मालूम पड़ गया होगा. Mohammed, you're looking handsome man with that beard on.
Too good, too good. Okay, so lots of zombies here. So I'm sure you don't need to really know where the buttons are. So time and again, I will ask you to put a thumbs up so that I know you're not sleeping, you're still with us, and you're questioning in case if you have. I will take the questions at the end of the session. So there I go. Shreyas, the first question that I have for you is, what really is this animal called digital marketing? Before I start, Hardik, thank you and Fazia for kind words. Thank you everyone. If you find me nervous, please pardon me. It's my first webinar and staring at so many faces. I'm already getting scared. And they're tagging me as expert. Trust me, nobody's expert. I know just little more than you. Let's say that. Okay. So I'm just trying to safeguard myself in case I go up. So let's start. Okay, digital marketing. Uh, it's a big broad subject, and it's a buzzword right now. Everybody, every second or third post you see on social media is learn digital marketing, and it's like I think every second or third person wants to become a digital marketing expert, and it's a good thing because I think lots of people are going to need that service. But the first thing is let's clarify what all it includes. It's a huge spectrum, and the first thing that comes to anybody's mind when we say digital marketing is social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, vagera vagera. However, that's just a tip of iceberg, and entire social media, I mean, entire digital marketing includes everything that you do on a digital platform, online internet and online platform. Um, some of the examples, if I want to list down, they all include, say, your search engines, search engine marketing, social media marketing, content creation platform, question and answer websites like Quora. Then it comes to content creation services like YouTube, online directories like IndiaMart, online PR and guest blogging, messaging on WhatsApp, newsletter, push notification, and your own media, that's your own website, and perhaps if you have your own app. Okay. So first thing is, when people say, I want to do digital marketing, they're assuming somebody out there will do something on social media, or in fact they've narrowed down the definition of digital marketing. Unless you find the right agency, that's what uh, things are limited to. Okay, so again, to repeat, that digital marketing is a plethora of activity, uh, all unified with a single purpose of bringing customer to your doorstep. So thank you very much for that, Shreyas. I think you almost answered the next question that I had for you, but I'll still ask you the next question. If you could give us a little pointers around this. So, एक हो गया कि when we approach social media marketing companies and agencies like yourself, I've had some very bad experiences, some okay experiences. But what I see is there is a lot of confusion. There was a lot of confusion in my head that what is really, how can you differentiate objectively between social media marketing and digital marketing? I understand that you said social media is different and it's a subset of the digital marketing, but if I have to objectively see, then what would I say? Social media marketing में ये चार चीजें होंगी पर ये दो चीजें नहीं होंगी, which is a part of digital marketing. Okay, so when people say they do social media marketing, or normally agency gives a package, they say, okay, monthly we'll charge you X amount of money, they'll create Y number of posts for you, they'll post 2 posts a week and stuff like that, so that your social media page is always active with some poster, maybe Father's Day poster if they do have no content. Sorry, Shreyas, there is a request that there are people from Gujarat also. So if we can stick to Hindi, तो मैं हिंदी में, ये भी मैंने इंग्लिश में ही बोला. ओके, तो हिंदी में हम बोलेंगे. हिंदी. हाँ, तो जब हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं तो कोई एजेंसी आती है, बोलते हैं हमारे पैकेज है 15,000, 20,000, 25,000 का, हम आपको 4 पोस्ट डाल के देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो नॉर्मली लोग पैकेज फॉर्म में काम करते हैं और उनका थोड़ा पोस्ट डाल देते हैं पीरियडिकली, पर कोई ROI कैलकुलेट नहीं करता. तो डिजिटल मार्केटिंग एक अलग ही सब्जेक्ट है जहाँ पे सोशल मीडिया तो है ही, बट उसके अलावा सोशल मीडिया हम लोग क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वहाँ पे आपका ऑडियंस है, वहाँ पे आपके कस्टमर्स है. ओके,
पर वो कस्टमर आपके ब्रांड से सोशल मीडिया में हमेशा एंगेज नहीं कर पाते। ऐसा कहते हैं कि at a given point of time only 3% of the people are looking for your प्रोडक्ट। अगर एक आपके फेसबुक ग्रुप पे 100 लोग हैं तो 3 ही लोग को आपकी सर्विस की जरूरत होती है। तो सोशल मीडिया में यू आर जस्ट पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम, आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या कोई हॉट टॉपिक है उसके बारे में बता रहे हो, बट वहाँ पे वो डिस्कशन कभी खत्म हो जाता है। अगर आप लकी हो तो कोई आपको मैसेंजर पे या डायरेक्ट मैसेज करेगा, उतना इंटरेक्शन होता है, बट उसके बाद आगे नहीं जा पाता। दैट इज वेयर एंटायर डिजिटल मीडिया कम्स। तो कस्टमर से फर्स्ट इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे हुआ, वो एक पार्ट है। वो भी आप लकी हो तो, और आपने करेक्टली उसको टारगेट किया हो तो, ओके। उसके बाद किया तो उसका आंसर डिजिटल मार्केटिंग से मिलता है कि एक बार यूजर ने आपके फेसबुक ग्रुप पे आए या इंस्टाग्राम पे आए, इसके बाद नेक्स्ट हाउ डू यू लेट्स पुट लाइक दिस, 100 लोग है एक ऑडियंस में, आपने आपका एड डाला या पोस्ट डाला, एक तो 2-3 जन इंटरेस्टेड रहेंगे पर बाकी 97 भी इंटरेस्टेड है पर अभी नहीं। हाउ डू यू कैपिटलाइज ऑन देम? तो तभी डिजिटल मार्केटिंग कम्स इनटू पिक्चर कि हम लोग उसके लिए पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स कौन है। तो सोशल मीडिया में वो नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग में इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। वी स्टार्ट विद, so there are 5 pointers. We start with identifying the audience, कि आपका ऑडियंस कौन है, डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, कि आप पैन इंडिया टारगेट करना चाहते हो या लोकली मुंबई में टारगेट करना चाहते हो, मुंबई में आप नवी मुंबई में टारगेट करना चाहते हो या साउथ बॉम्बे में टारगेट करना चाहते हो। तो इट इज वन लेवल डीपर वेयर आप सोचते हो कि हाँ मुझे कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन को टारगेट करना है, नंबर 1, कौन सी एज ग्रुप को टारगेट करना है, और एक बार टारगेट कर दिया, आपके कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर दिया, उनको टारगेट करते हुए आप कंटेंट बनाते हो, और व्हेन पीपल कम, और अब हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं जिसके अंदर ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर दैट द कस्टमर को जानना चाहिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। जब भी कस्टमर आपके सर्विस से इंटरेक्ट करता है देन दैट्स वेयर यू कन्वर्ट अ विजिट इनटू अ लीड। तो we will cover this as we move forward, because I think is it enough, Hardik, you think, or we need more information? No, I think what I took from what you just said, Shreyas, is the fact that this is what I understood from your answer, कि सोशल मीडिया में अगर हम एड्स कर रहे हैं या लाइक यू सेड पैकेजेस, तो पोस्टिंग कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो 3 people out of 100 would probably buy your services today. But then what is it that you do with the other 97 people who are interested पर आज शायद वो आपकी सर्विस ना खरीदें? तो उसके साथ आप जो करते हो that is a form of digital marketing. Have I got you right? That's correct. Okay. So अभी ये जो yeah, sure. So that is one of the definition कि खाली सोशल मीडिया पे कुछ कर दिया और आपको बिजनेस मिलेगा, वो गलत है। उससे आपको मिलेगा पर जितना मिल सकता है उतना नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी इतना सारा इंफॉर्मेशन पड़ा है, एवरीबडी इज पोस्टिंग। सबसे पहले आपने पोस्ट डाला तो आपको द प्रोबेबिलिटी कि कोई आपका पोस्ट देखे वो कम हो गया। आधे लाइक्स तो कहीं बांग्लादेश से आएंगे, कहीं अलग कंट्री से आएंगे, केन्या से आएंगे, कहीं से आएंगे, और जिन्होंने आधे लोग ने लाइक किया और आपके फ्रेंड्स और फैमिली रहेंगे। तो जो जिसको आप पहुंचना चाहते हो, जिस पर्सन तक आप पहुंच नहीं पाते खाली। तो इन दैट डेफिनेशन सोशल मीडिया एक बहुत नैरो आउटलुक है, डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट आउटलुक है, जो सबसे पहले स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, और उसके लिए कौन से टूल्स यूज करने चाहिए उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो बज़वर्ड जो होता है, हम सोशल मीडिया पे आ गए तो बिजनेस आना चालू हो जाएगा, दैट इज नॉट द आंसर। तो श्रेयस, मैं इंटरनली जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो वी यूज दिस वर्ड, शायद ये वर्ड सही नहीं है पर वी यूज दिस, आई थिंक एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, दैट हम 97 जो लोग हैं जो जिनको हमारे सर्विस की जरूरत है पर अभी तक रेडी नहीं है परचेस करने के लिए, अभी तक वो सोच रहे हैं, एनालिसिस पैरालिसिस में है, तो वी यूज दिस वर्ड, उनको सिड्यूस करने का मैकेनिज्म क्या है, यानी टू वार्म अप दैट लीड, उसका मैकेनिज्म क्या है? एंड वी, आई मीन यू नो इट ऑलरेडी, हम अलग अलग तरीके से करते हैं।
what are some of the things that you can suggest जो डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, which forms a digital marketing ecosystem to seduce these customers और prospects, funnel में जो आ तो गए हैं पर अभी तक खरीदा नहीं है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं other than the ads and posting? अच्छा, सबसे पहले सिंस एवरीबॉडी यहाँ पे है, आप लोग कितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, या आप लोगों ने पैसा स्पेंड किया है सोशल मीडिया पे पोस्ट बूस्ट किया है टू ब्रिंग ट्रैफिक? थम्स अप प्लीज. When he's saying post boost किया है, he's talking about ads किए हैं आपने. पैसा स्पेंड किया है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे टू गेट कस्टमर. ओके, ओके, अभी थम्स अप बंद कर दीजिए और आप लोगों को कितना फायदा हो इसमें से फिर से थम्स अप कीजिए, जिसको बेनिफिट मिला हो उससे. तो पहले जिसने एक बार थम्स अप किया और दूसरी बार नहीं किया, यानी आपने पैसा स्पेंड किया पर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, राइट? तो आपने बंद कर दिया, बोलते इसमें तो मेरे 5,000 चले गए, 10,000 चले गए, 15,000 चले गए, एक या दो लीड आई रहेगी, वो भी इंक्वायरी होकर चली गई. So that is what usually happens in most of the people, that when they try to do by themselves, they don't fully understand it. Although Facebook ने ऐसे अच्छे टूल बना दिए कि आप या मैं कोई भी टूल्स तो सेम ही यूज करते हैं, जो आपके पास है वही हमारे पास है, सिर्फ सोच अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, वो है. तो विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने गूगल एड्स रन किए? So we have only 2 people, right? 3, 4 people have run Google Ads. Google Ads से कितने लोगों को बेनिफिट मिला? ओके, राइट. अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये आप कर सकते हो. देयर आर 5 स्टेप्स जो होते हैं हम लोग in implementing a digital marketing ecosystem, जो हार्दिक बात कह रहे थे. Number 1, it starts with the research. Have a solid research. आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हो, कि आपको पता है कि आपका ऑडियंस साइज कितना है. जिसको पता है इंटरनेट पे व्हाट इज द ऑडियंस साइज, कैन यू गिव मी थम्स अप प्लीज? फोर, वेरी गुड. जिसको नहीं पता उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. एज ए इंटरनेट कंपनी 4 साल पहले हम लोग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे हम लोग, जो इंडियन के वेडिंग सेगमेंट के लिए केटरिंग करे. ओके, तो वी वर वेरी फोकस्ड फॉर द इंडिया मार्केट कि इंडिया में लॉन्च करेंगे, अभी तक कोई है ही नहीं. तो हम लोग को फर्स्ट मूव का एडवांटेज था कि मार्केट रेडी नहीं है, क्योंकि लोग ढूंढ नहीं रहे, और हम लोग एक ही कंपनी है जो कर सकती है शायद अगर हमने लॉन्च किया तो. पर ऐसा कहते हैं कि बिफोर डूइंग एनीथिंग यू मस्ट डू थॉरो रिसर्च. ओके, अभी आप रिसर्च कहाँ पे करोगे? तो आपको ये डेटा, अगर आप फेसबुक कर रहे हो तो आपको ये डेटा फेसबुक के एड मैनेजर से मिल जाएगा. अगर आप गूगल एडवर्ड्स रन कर रहे हो तो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज आइडेंटिफाई डेटा, कि कितने लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च कर रहे हैं. जब भी हमने ये सर्च किया तो इंडिया में हम लोग को महीने के 10 to 100 पीपल मिले जो हमारी सर्विस को ढूंढ रहे थे. बट जब भी हमने ये सर्च एक्सपांड किया टू इंक्लूड नॉन इंडिया, we got about 10 lakh searches a month. So I was expecting कि अगर यहाँ पे 100-200 है तो यहाँ पे 1-2 लाख होना चाहिए या 3-4 लाख होना चाहिए. It is huge market out there. Okay, तो सबसे पहले हम जब रिसर्च करते हैं उसका बेनिफिट है कि हमें मार्केट साइज पता चलती है. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द मार्केट, दिस थिंग. सेकंड, आपको मिल गया तो वी क्रिएट एन एड दैट इज टारगेटिंग दैट ऑडियंस. उनको क्या मैसेजिंग जाना चाहिए उसके बारे में हम लैंडिंग पेज बनाते हैं. इंटरनेट पे क्या होता है, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता यूजुअली. ट्रस्ट बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑनलाइन वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज नो फेस, राइट? लोग एक किसी ऐसे
पोस्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो या कोई बैनर के साथ इंटरेक्ट करता रहेगा। सो वी मेक अ लैंडिंग पेज जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या हो जाता है, जब हम पोस्ट रन करते हैं तो हम लोग बहुत कम इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वहाँ पे एक टीजर टेक्स्ट डाल सकते हैं। वैसे ही हम लोग ने अगर गूगल एड भी रन किया तो 6-7 लाइन 8 लाइन रन कर सकते हैं। एड का काम एक ही है, ग्रैब द आईबॉल्स, लेट पीपल को लगना चाहिए कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम के, जाके देखते इसमें क्या मिलेगा मुझे। तो आपका एड का काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो सोशल मीडिया अगर हम कर रहे हैं तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यूजर्स को आपकी वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पे लाना जहाँ पे दे कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, नहीं तो वो स्क्रॉल करके नेक्स्ट पोस्ट पे चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यू नीड अ लैंडिंग पेज जहाँ पे आप आपके सर्विसेज के बारे में एक्सपांड कर सकते हो। ओके, यू नीड टू गिव फेस टू योर बिजनेस और अ सर्विस। अगर आप सर्विस में हो, इंडस्ट्री में हो, प्रोफेशनल सर्विसेज में हो, कंसल्टेंट हो, तो आप कुछ बेच नहीं रहे हो, आपको दिखा आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो हाउ डू यू शो? अगर आप प्रोडक्ट्स में हो तो आप दिखा सकते हो, मशीन दिखा सकते हो, कुछ मशीनरी वर्किंग दिखा सकते हो। अगर आप कंसल्टिंग में हो, हाउ डू यू गो टू द नेक्स्ट लेवल? तो आप लैंडिंग पेज पे सबसे पहले यू मस्ट don't go to DTP operators and get posters done or any creative done. Okay, the biggest mistake you will do कि पैसा बचा के किसी कजिन के पास से या इसके पास एक लैंडिंग पेज बनवा दिया, वो मत कीजिएगा। बिकॉज आप जो भी स्पेंड करने वाले हो आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। अगर लोगों को शॉर्टी वेबसाइट मिली, दे विल नॉट ट्रस्ट यू। ओके, सो नंबर 1 इज ट्रस्ट, हैव अ प्रोफेशनल क्वालिटी लैंडिंग पेज डन। ओके, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैं बताऊंगा। इज आपने सुना भी रहेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, इज आइडिया, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो आप ऐसा लैंडिंग पेज बनाइए जिससे यूजर एकदम अट्रैक्टिव हो, यूजर को अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यू टू बिल्ड ट्रस्ट, हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट? उसके 2 तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रहेंगे, उनकी टेस्टिमोनियल्स डालिए। लेट इट बी रियल टेस्टिमोनियल्स, नॉट फेक वंस, पीपल कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। तो फैक्ट्स डालिए। ओके, उससे क्या हो जाएगा, पीपल विल ऑलवेज वांट टू चेक कि हाँ इनको इनको फायदा हुआ है तो मुझे भी फायदा हो सकता है और ये जेन्युइन बंदा है। ओके, स्पेशली डोंट पुट डमी नेम, इफ पॉसिबल मार्क एस लिखते हैं। ओके, कोई लिखेगा राहुल के, तो ऐसा मत कीजिए। हो सके तो यूज प्रॉपर नेम्स। लेट लेट अदर ऑडियंस पीपल रियलाइज दैट हम लोग ने असली में बिजनेस किया है किसी के साथ, भले वो 2 बंदा भी क्यों ना हो। ओके, पुट रियल पीपल, रियल टेस्टिमोनियल्स, डोंट फेक टेस्टिमोनियल्स। ओके, एक चीज तो वहां से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास पॉसिबल है कि आपको लगे कि आपने अपना क्लाइंट रिवील कर दिया तो भी आपको कंपटीशन से हार्म नहीं है, तो रिवील योर कस्टमर्स लोगो, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका कस्टमर किसी और के पास नहीं जाएगा, तो आप अपने क्लाइंट्स के लोगोस प्लीज दिखाइए। उससे डबल ये मिल जाता है बेनिफिट कि हाँ इतना हुआ है। थर्ड चीज, आप आपके केस स्टडीज बनाइए, आपने जो काम किया रहेगा। अगर आप कंसल्टेंट हो तो आपने कुछ तो प्रोजेक्ट में काम किया तो आप केस स्टडी डाल दीजिए। आई हैड अ क्लाइंट जो रेज्यूम लिखते हैं, अगर आपने उनको रेज्यूम दिया तो वो रेज्यूम को अच्छे से बना के दे सकते हैं। तो पुट एज मच इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी टू prove your point. I'll give you one more example. Just 3 days back I was searching for a service provider जो ज्वेलरी को एनहांस कर सके, फोटोशूट करने के बाद ज्वेलरी को एनहांस कर सके। तो मैंने क्विक गूगल सर्च किया एंड आई फाउंड सम पीपल आउट देयर एंड आई गॉट फोर गुड कंपनीज। बट एक बंदे ने अच्छे से पूरी वेबसाइट में हर एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया था विद लॉट्स ऑफ विजुअल्स, लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, विद क्लैरिटी ऑफ प्राइसिंग। तो मैंने बाकी 3 के विंडोज बंद कर दिया और इस एक के पास गया। तो मैंने सो एज अ यूजर ऑल्सो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं जितना ट्रांसपेरेंटली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितना हार्डवर्क करके इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आप देखिए आप 8 घंटा काम कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज 24 घंटा काम कर सकते हैं, 365 डेज, नो वीकेंड्स, एवरीथिंग। सो no salesperson will be able to do as much work as your landing page or a website will do. तो आप जितना हो सके उतना अंदर एफर्ट डालिए, sit peacefully, put your mind, और जितना think like this, अगर आपका बंदा, आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आपके सामने आ जाए तभी आप उसके क्या बात करना चाहोगे वही उस पर डालना है। तो आप लैंडिंग पेज बनाइए, वो स्टेप 2 हो गया। अभी वो बंदा वेबसाइट पे आ गया, उसके बाद आप उसको
कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, मेरी वेबसाइट पे 100 लोग आएंगे, मुझे पता कैसे चलेगा कौन आया है, राइट। तो हम लोग 2 मैकेनिज्म यूज करते हैं लीड कैप्चरिंग के लिए। हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, एक फॉर्म होता है जनरल कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, जहाँ पे लोग अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देता है। जब भी वो डालते तो आपको एक लीड मिल गई, इट मीन्स ये पर्सन आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ओके। तो then you get back to them and if you're lucky you get the business। तो वहां पे जर्नी एंड हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर लोग आए, पीपल डू नॉट वांट टू गिव द नेम एंड नंबर ऑल द टाइम, वो लोग सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं, तो आप उनको फ्री में क्या दे सकते हो। तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज्यादा इजी है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बट बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री यू कैन ऑलवेज कम अप विद अ सोल्यूशन। जैसे कि अगर मैं वेब डेवलपर हूँ या डिजाइनर हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्री ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट, जैसे कि ओल्ड वेबसाइट है तो मैं बोल सकता हूँ पुट योर वेबसाइट यूआरएल, नेम एंड नंबर, तो आपकी वेबसाइट की मैं फ्री में ऑडिट करके दे दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरे आधा घंटा जाएगा पर मुझे फ्री में एक लीड मिल जाएगी, ओके। तो लीड कैप्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब तक आप लीड कैप्चर नहीं करोगे, आपका कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी से फायदा नहीं मिलेगा, ओके। अभी किसी ने वो भी किया। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि लोगों ने कुछ नहीं किया, ना तो फॉर्म भरा, ना तो ईमेल आईडी शेयर किया, ओके, वैसे चले गए। तो गूगल जब भी हम लोग रन करते हैं एड्स गूगल में या फेसबुक में या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या इंस्टाग्राम पे, देयर समथिंग कॉल्ड इज रीमार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फुटफॉल हुआ है हमारे लैंडिंग पेज पे, हम उनको टैग कर लेते हैं, और जब भी वो किसी और वेबसाइट पे जाते हैं देन दे स्टार्ट सीइंग अवर एड। आपने अगर एक्सपीरियंस किया रहेगा, जब आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हो, आपने कुछ सर्च किया, उसके बाद आप जब भी कोई अलग वेबसाइट पे जाते हो, तभी भी आपको वो एड कंटिन्यूली दिखते रहेगी, राइट। वो रीमार्केटिंग है। तो जब तक आप रीमार्केटिंग नहीं करते हो, जो कि 100 लोग आए, समझो 2 लोगों ने अपना फॉर्म भरा, 3 लोगों ने लीड कैप्चर का फॉर्म भरा, और अभी 95 अभी भी बाकी है। उन 95 लोगों को आप फिर से, दे वर इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई दे क्लिक्ड ऑन योर एड इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। हाउ डू यू गेट बैक टू देम? तो उसके लिए आप रीमार्केटिंग की एड्स रन कर सकते हो। ऐसा कोई सिनेरियो भी होता है जहाँ पे कस्टमर ने ईमेल आईडी दिया है, आपको फोन नंबर नहीं दिया अभी तक, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका डेटाबेस बना है और आपके कस्टमर अभी तक बने नहीं है, उनको आप ड्रिप ईमेल से, ओके, फॉलो अप ईमेल से आप उनको फॉलो अप कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू कि 7 दिन का सीरीज बना दो, या हर हफ्ते का डे 1 में ये भेजेंगे, डे 5 में ये भेजेंगे, डे 11 पे ये भेजेंगे, उसको ड्रिप ईमेल कहते हैं हम लोग। वी सेंड इन्फॉर्मेशन इन रेगुलर इंटरवल, ओके। एंड फाइनली इज एनालिटिक्स। ये सब करने के बाद कौन सा मीडियम मोस्ट सक्सेसफुल था, कौन से कीवर्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल थे, तो ये पूरा इकोसिस्टम बनता है कि रन द एड्स, ब्रिंग पीपल टू अ लैंडिंग पेज, उनको फिर से keep them in the loop using remarketing ads, and finally you analyze कि क्या वर्क हो रहा है आपके लिए and accordingly take the actions. Thank you very much, Shreyas. I think that was a very detailed explanation just for the सभी लोगों को ये चीज समझ में आया। I just quickly noted down श्रेयस ने जो भी बोला उसके लिए। फर्स्ट चीज जो श्रेयस ने बोला कि किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट में जाने से पहले, किसी भी एजेंसी को रिक्रूट करने से पहले बहुत जरूरी है आपका खुद का रिसर्च करना, सो दैट आप एजेंसी को बता सको कि मेरा कस्टमर ढूंढा कैसे जाते हैं, मतलब वो सर्च क्या करता है। अगर आपको ही नहीं पता वो सर्च क्या करता है, तो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको नहीं हेल्प कर सकती। और ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ एज ए कंपनी काम किया है, पर हम कभी बता ही नहीं पा रहे थे उनको कि एग्जैक्टली मेरा कस्टमर को सर्च कैसे करने का। तो अनलेस हमने वो खुद ने नहीं ढूंढा, तब हमें वो समझ में नहीं आया। रिसर्च और भी चीजों के लिए काम आती है, जो मैं आगे पॉइंट्स में बोलूंगा। द सेकेंड थिंग जो श्रेयस ने बोला, इस एड्स रन कीजिए, क्योंकि अगर आप एड्स रन करोगे तो आप अपना जो भी मैसेज है, जो भी आपका मार्केटिंग का मैसेज है, वो आप उन लोगों तक पहुंचा पाओगे जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो एड्स इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग दैट श्रेयस ने बोला इज द लैंडिंग पेज।
नाउ श्रेयस, आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट, तो मैं आपको बाद में पूछूंगा। तो लैंडिंग पेज इज अ पेज के ऐड पे अगर कोई क्लिक करता है तो वो एक पेज पे लैंड करता है, वो पेज आपके पास होना चाहिए। और ये पेज में जैसे श्रेयस ने बोला, यू नो, मेक श्योर दैट यू किसी के भी पास जाके कुछ भी करके आप मत कराओ, वो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड वो ध्यान इसलिए दीजिए, यू नो, आप सभी लोगों ने देखा होगा राइट, वो मोनालिसा वाला पिक्चर के पैसे नहीं दोगे तो मोनालिसा ऐसी ड्राइंग मिलेगी, और पैसे दोगे तो मोनालिसा ऐसी ड्राइंग मिलेगी। अगर लोग आपके दुकान पे आ रहे हैं तो यू मेक श्योर राइट दैट योर दुकान इज गुड। इफ पीपल कमिंग टू योर फैक्ट्री, यू मेक श्योर, अगर कोई मेहमान घर पे आता है तो आप उसको अपनी बेस्ट कटलरी में उसको चाय देते हो राइट। द लैंडिंग पेज इज एग्जैक्टली दैट फॉर योर मार्केटिंग। अगर वो शैबी होगा तो लोग चले जाएंगे। देन ही मेंशन्ड वेबसाइट, सो आई एम कंपेयरिंग द वेबसाइट लैंडिंग पेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो श्रेयस ने बोली इज ट्रस्ट। ऑनलाइन पे आपके पास से कोई भी खरीदेगा तभी जब आप उस पर ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये पॉइंट पे मुझे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी? पीपल हु आर मैरिड रेज योर हैंड, मतलब रिएक्शन से। ओके, बहुत जनों ने अचानक से कैमरा बंद कर दिया है, मे बी दे डोंट वांट देयर वाइफ्स टू सी इट और डोंट वांट मी टू सी इट। आई मीन, आई एम नॉट गोइंग टू रेज माय हैंड बिकॉज आई एम मैरिड। So okay, great. So a lot of people are married here. Some of them are happy also. Now जो भी married हैं या जो भी unmarried हैं, how many of them, वो बोलते ना पत्थर लेके सर पे खुद के मारा, how many of them actually is a love marriage? या आप अफेयर में हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, अगर कभी भी आपने प्यार किया है तो यू वुड हैव रियलाइज दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में, अनलेस यू लुक लाइक ऋतिक रोशन, कि आपने जाके वो बंदे को या बंदी को बोला आई लव यू और उसने बोला अरे तेरा ही इंतजार था, एंड गाना शुरू हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं ना। तो आपको धीरे 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 उसको इम्प्रेस करना पड़ता है। इमेजिन, ये तो प्रोस्पेक्ट है और एक नहीं है, हमको तो हजारों चाहिए, क्योंकि हजारों आएंगे तो साला 2 साइन अप करेगा, 2 अपना प्रोडक्ट लेगा राइट। तो आपके पास ऑनलाइन पे भी ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि धीरे 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 आप इम्प्रेस करो। एक दिन आप उसको जाओ स्माइल दो, दूसरे दिन आप गाना गाओ, तीसरे दिन आप फूल दो, चौथे दिन कॉफी पे लेके जाओ, 5वें दिन कुछ और करो, छठे 7वें 8वें दिन शायद आप उसको आई लव यू बोलो और वो बोलेगी हट मैं तेरे को फोन नंबर नहीं देती। तो फिर क्या करोगे? तो फिर मे भी उसके फ्रेंड के रूट से जाओगे। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है ना, दैट इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, रीमार्केटिंग। यानी आप वापस से वो अपने आपका जो प्यार है उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे और कहाँ कहाँ जाके क्या क्या बताओगे, सो दैट फाइनली वो बोले हाँ मेरे दोस्त मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ या शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होता है, ये वेबिनार के स्कोप के बाहर की बात है। सलीम को बहुत मजा आ गया, सलीम इज लाफिंग, मे बी उसके साथ ऐसा ही हुआ है। so that is all about remarketing. ड्रिप ईमेल इज ऑल्सो एक तरीका है जिससे हम बार बार पहुंच सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास। एंड लास्ट जो श्रेयस ने बताया, एनालिटिक्स। ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ जा रही है और कौन सी लड़की आपको भाव दे रही है, कौन सी लड़की नहीं दे रही है। अगर ये नहीं मालूम है तो आप गलत जगह पे आप ट्राई करोगे, पता चला उसका तो शादी हो गया, बच्चा है, तो फिर आप मामा हो गए। तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के एनालिटिक्स देखिए कहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। I explained it in my ways. I'm sorry, Shreyas, if I've taken up from the technical explanation, but I thought सब लोग को समझ में आया। समझ में आया तो ताली बजाओ, चलो समझ में नहीं आया तो फिर remain on the grey screen and enjoy behind the curtains. Okay, good. So Shreyas, I have a follow up question for you. You mentioned about landing page. Okay, और मेरा और आपका ये चीज पे बहुत बड़ा डिबेट भी हो चुका है हमारे कंपनी के लिए। Why do you need a landing page? Why can't you do with just the website? ओके, वेबसाइट पे आप जाओगे, किसी भी वेबसाइट पे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो लोग सेकंड पेज पे चले जाते हैं, थर्ड पेज पे चले जाते हैं, आए किस लिए है और क्या करते हैं। अगर आप खुद ही देख लो, यू गो टू फेसबुक टू फाइंड समथिंग और क्या दिख गया तो क्या करने आए थे और क्या करने लगते हो, राइट। तो लैंडिंग पेज में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री। वहां पे एक ही ऑब्जेक्टिव है, सब्सक्राइब नाउ और सबमिट योर इन्फॉर्मेशन नाउ। बार बार एक ही मैसेज हम लोग हैमर करते रहते हैं। और मैंने जैसे लैंडिंग पेज देखे जो कम से कम ऐसे 15-20 स्क्रॉल लंबे है, बट द एंड ऑफ द डे यू आर सो कन्विंस कि नहीं ये तो मैं खरीद के रहूंगा, ये तो चाहिए ही मुझे। तो उसको पर्सनल राइटिंग कहते हैं। तो सर्विस इट इज नेसेसरी बिकॉज दो तरीके के लोग होते हैं। कोई लोग ऐसे विजुअली आपका इन्फॉर्मेशन देखते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, कोई लोगों को पढ़ने में मजा आता है,
राइट? सो लैंडिंग पेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वेबसाइट में लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दे विल डू समथिंग एल्स, दे मे चेक आउट हु आर योर अदर कस्टमर्स, फिर गूगल करके सर्च करेंगे वो कौन है, चलो ये देखते हैं। तो जो मेन पर्पस के लिए आपने पैसा खरीद के लोगों को वेबसाइट पे लाया और फिर लोग टाइम पास करेंगे, तो यू डोंट वांट दैट, यू वांट कि उनको फनल में लाना है। अगर उन्होंने आपका एड देखा, क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे हेडर फुटर नहीं होता है, देयर इज नो अदर बटन, दे कांट गो एनीवेयर, अगर उनको अच्छे लगा तो लोग विंडो बंद कर देंगे या बैक जाएंगे, बट ओनली सो दे हैव 3 ऑप्शन, क्लोज द विंडो, गो बैक और कीप रीडिंग। ओके, दैट्स व्हाट यू वांट देम टू डू। Wonderful. Thank you, Shreyas, for answering that. So the key term is अगर लोगों को distract नहीं करना है तो landing page चाहिए. अभी the question is, Shreyas, कि अगर landing page is वहां पे काम होता है landing page बनाने से, तो मुझे website क्यों चाहिए? Can I not do with only landing pages? आप एक सर्विस नहीं बेचते हो ना, पर आप एक प्रोडक्ट नहीं बेचते हो। हाँ, तो आंसर इज दिस। हाँ, करेक्ट। तो लॉट ऑफ पीपल सेल 3 to 4 सर्विसेज। तो हम लोग जो जिस तरह से हम काम करते हैं, व्हाट वी डू इज एवरी पेज इज ऑलमोस्ट लाइक अ लैंडिंग पेज, जो आपके एटलीस्ट टॉप 3 सर्विस या टॉप 3, so every page is like a service page, like a landing page by default. Okay, but sometime when you're running an ad, we make a more customized landing page which is filled with more information. अभी वेबसाइट जरूरत इसलिए क्योंकि आपकी वेबसाइट में सिर्फ 40 टेस्टिमोनियल रहेगी या 20 टेस्टिमोनियल रहेगी, तो आप सब कुछ एक पेज पे तो नहीं डाल सकते, फर्स्ट चीज। ओके, पीपल वुड वांट टू रीड देम एट लेंथ। ओके, तभी ये सब बिकॉज टेस्ट लर्निंग पे क्या होता है, हम लोग 4 या 5 चोजन टेस्टिमोनियल डालते हैं जो बेस्ट वाले है। वो पोर्टफोलियो है तो हम 5-6 फोटो दिखाएंगे अपने पोर्टफोलियो के, राइट? बाकी के 50 के लिए हम लोग वेबसाइट पे व्यू मोर बटन देते हैं। नॉर्मली हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक आपका बैनर आ जाता है, आपकी सर्विस आ जाती है, आपके टेस्टिमोनियल्स है फॉर एग्जांपल 3 या 4 है, तो या सॉरी 15-20 है, तो आप 4 या 5 दिखाते हो, फिर नीचे बटन देते हो व्यू मोर। लैंडिंग पेज हम ये नहीं कर सकते ना, वी नीड डेडिकेटेड सेक्शन फॉर एवरीथिंग। ओके, ऊपर से लैंडिंग पेज में ट्रस्ट कैसा है, not everybody comes through our ad also, right? People come through your website also, where they want to, देखो आप 2 जन की कंपनी हो या 50 जन की कंपनी हो, everybody wants to give a feeling that they are big and they want to elaborate on that, to tell them that मैं अलग हूँ और मेरा बिजनेस अलग है, और they want कि बिजनेस ऐसे ही लगे जैसे कोई बड़ी कंपनी की वेबसाइट हो, which is possible these days definitely to create a professional looking website, and they may be single, like एक ही जन पीछे बंदा है, सोलोप्रेन्योर है, तो भी वेबसाइट ऐसे दिखेगी जैसे कि अरे वाह, यहाँ पे तो 20 लोग काम करते रहेंगे, तो वो पॉसिबल है। तो वेबसाइट विल गिव इंप्रेशन कि आप प्रोफेशनल हो, यू अंडरस्टैंड आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपको मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि आप यू कैन ऐड मोर सेक्शन, आप केस स्टडीज ऐड कर सकते हो, आप एफएक्यू सेक्शन ऐड कर सकते हो, आप you can give more information so that कस्टमर को आपके ऊपर फेथ है कि नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चन को आपने सो थिंक लाइक दिस, वेबसाइट, यूज योर वेबसाइट एज योर मार्केटिंग मशीन। आप जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसके अंदर डाल सकते हो, आप अंदर ब्लॉग डाल सकते हो, आपको पीरियडिकली कुछ थॉट्स आते हो, जैसे अगर फिर से मैं एग्जांपल दूंगा, रेज्यूम राइटिंग में क्लाइंट वो रेज्यूम रीराइट करके देते हैं अच्छे से, तो ब्लॉग पे वो इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं कि 6 मिस्टेक्स टू अवॉइड ऑन योर रेज्यूम्स, फिर हाउ टू शुड आई यूज माय फोटोग्राफ ऑन माय रेज्यूम और नॉट, फॉर एग्जांपल। ओके, so how to write the summary of your bio, of your profile, बहुत सारे क्वेश्चन। तो जहाँ पे आपको लगे कि इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो टाइम टू टाइम, तो आप कहाँ पे डालोगे, तो वेबसाइट विल हेल्प यू डू ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। Shreyas, there is a request on more examples, but I'm itching to give an example of something जो मैंने खुद ने experience किया है. So I'll give that example very quickly for the audience. देखिए, लैंडिंग पेज और वेबसाइट, ये जो बात चल रही है, और एड्स वाली जो बात चल रही है, हमारे एक क्लाइंट हैं जो रिटेल शोरूम है उनका कपड़े का। नाउ अभी जब ये एड्स करते हैं, तो ये एड्स क्या करते हैं, ये करते हैं 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन एनीथिंग दैट यू बाय। तो जब ये ऐड होती है तो आपको क्या लगता है बंदा क्यों आएगा? उसी चीज के लिए आएगा ना, 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन एनीथिंग। But now you want to sell the product which is the most profitable product for you.
हाँ या ना? आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बेचना अच्छा लगता है? कुछ भी बिकेगा चलेगा? इफ सबसे प्रॉफिटेबल, देन पुट अ थम्स अप सो दैट आई नो दैट दैट्स व्हाट इट इज। क्या? तो अगर सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा और वो एड में लिखना होगा कि मेरे शोरूम में घाघरा सबसे बेस्ट मिलता है। अगर आपको बेस्ट घाघरा लेना है तो एक बार तो आप ये बिल्कुल देखिएगा। तो क्या होगा? बंदा वो घाघरे के डिटेल्स देखने के लिए आएगा। नाउ योर लैंडिंग पेज विल ओनली फोकस ऑन दैट वन प्रोडक्ट कंप्लीटली एंड नॉट अलाउ अ पर्सन टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब सवाल ये है कि तो फिर वेबसाइट क्यों चाहिए? वेबसाइट इसीलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि अगर आपको गर्लफ्रेंड को हाँ बुलवाना है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट एग्जाम्पल, तो आपका काम कहाँ होगा? आपका काम होगा एक रेस्टोरेंट में, एक कैफे में, एक बगीचे में। बट काम होने के बाद घर तो चाहिए कि नहीं? क्या आप बोलोगे नहीं मैं बगीचे में ही रहता हूँ? क्योंकि अगर घर होगा तो बंदा बोलेगा ना हाँ ये इंसान से शादी करने लायक है। तो वो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए आपको वेबसाइट भी चाहिए। हैव यू गॉट इट? पुट अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दैट। और लोग यहाँ बड़ी मिस्टेक करते हैं, यू नो, आई ऑलवेज से पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये गलती नहीं करनी चाहिए। यानी चाराना बचाने में 1 रुपए का नुकसान नहीं करना चाहिए। लोग बहुत जगह पे गलत जगह पे कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करते हैं। लैंडिंग पेज बनाते हैं, इतना घटिया लैंडिंग पेज बनाते हैं कि उस पर लैंड होते ही इंसान फिसल जाए। तो वो लैंडिंग पेज का कोई मतलब ही नहीं हो गया, या लैंडिंग पेज बनाते ही नहीं है क्योंकि उसमें कॉस्ट लग रहा है। But remember, nothing is more expensive than losing a prospect. Do you guys agree? Put a thumbs up again. So I have another question, Shreyas, for you. Again on your same explanation. आपने कुछ एक लैंडिंग पेज का एक मंत्र दिया हमें, AIDA. I'm sorry, I can be wrong. Can you elaborate on that? वो AIDA क्या है? इफ आप लोग में से कोई भी मार्केटिंग बैकग्राउंड से होगा तो आपको तो ये सिलेबस में आ ही गया रहेगा अगर पढ़ा होगा तो। मैंने नहीं पढ़ा था तभी, बिजनेस चालू करने के बाद पढ़ा। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप कभी भी देखोगे किसी भी जगह पे तो आपको रिपीटेडली दिखता ही रहेगा। अगर आपको खुद के लिए भी कंटेंट कभी लिखना हो, कुछ आइडिया नहीं आया, चलो ये आप यूज करोगे फॉर्मूला तो आपका पोस्ट हिट ही जाना है। ओके, अगर आप इनकी वेबसाइट देखोगे, एफएक्स की भी लैंडिंग पेज के फेसबुक पेज, आपको ये किसी ना किसी तरह से यू विल सी इट इज नेचुरली कमिंग इन दैट। ओके, तो ए फॉर अटेंशन, हाउ टू ग्रैब अटेंशन, यूज नाइस ग्राफिक्स, टेक्सचरिंग। ये तो हम एफएक्स का ही आंसर है। हम एड रन कर रहे थे, वहां पे एक फोटो यूज किया था हम लोग ने जहाँ पे आदमी का फेस नहीं दिख रहा है, उसका हैंडशेक दिख रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग ने दूसरा एड रन किया जिसके अंदर फेस दिखता है। तो जिस एड के अंदर ह्यूमन पर्सन इज देयर विद अ फेस, इट गॉट मैक्सिमम इंटरेक्शन। तो अटेंशन आ गया यहाँ पे कि यूज समथिंग। और साइकोलॉजी, आप कुछ भी ऐड करो तो एक फेस डाल देना आपके पोस्टर में, योर पोस्टर विल वर्क बेटर देन नो फेस। जैसे अभी ये इनवाइट के पोस्टर में मेरा फेस था ना, बिफोर कोविड लुक का। So anyways, face is important. There's a human touch to face, human like human face. So please add karo. So add a photo that is a face. That's a key takeaway you can take it away from. Okay. Use a nice, एक अच्छी सी बड़ी सी big bold headline use करो। वो headline ऐसी use कीजिए आप कि talk to customer, don't talk about yourself. Okay. अगर आप लिखोगे, अगर एक घाघरे का एग्जांपल ले लेते, बेस्ट घाघरा, वी आर सेलिंग द बेस्ट घाघरा, ये मत लिखो। क्या लिखोगे आप? ओके, लुक बेस्ट इन दिस बेस्ट घाघरा। तो ऑलवेज आपके हेडलाइन के अंदर फोकस शुड बी ऑन द कस्टमर, ऑल द कस्टमर्स प्रॉब्लम। ओके, अपने बारे में कुछ मत बताइए, कस्टमर को आप खुद के बारे में सोचिए। जो योर हेडलाइन हैज टू बी नाइस, कैची। आप उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि हाउ टू हैव अ हैप्पी वाइफ, डू यू वांट अ हैप्पी वाइफ, something like that. People will want to read it, right? So have a very catchy headline, have a nice image, attention. एक बार attention मिल गया, second है interest. How do you take them ahead? मैंने देख लिया, पोस्ट पढ़ भी लिया, तो am I really interested in this? तो आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन एलोबरेट करो। आप फीचर्स मत बताइए आप आपके प्रोडक्ट के बारे में। ओके, अगर आप कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में हो, इसमें डोंट टॉक अबाउट फीचर्स फर्स्ट, टॉक अबाउट बेनिफिट्स। ओके, अगर मैं प्रोडक्टिविटी ऐप बना रहा हूँ तो मैं नहीं लिखूंगा कि इसके अंदर आप
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो या मल्टीपल टास्क बना सकते हो। आप ये लिखोगे कि सेव टाइम, ओके, डबल योर प्रोडक्टिविटी लिखोगे इन 1 डे, गेट 50% ऑफ योर वर्क डन। तो आप बेनिफिट्स लिख रहे हो, आप फीचर्स नहीं लिखते। तो सेकंड पोर्शन इज इंटरेस्ट, राइट अबाउट बेनिफिट्स एंड नॉट अबाउट फीचर्स फर्स्ट, ओके। फिर है डिजायर, उसको लगना चाहिए कि मैं खरीदूं। तो उसमें आपका ट्रस्ट के पॉइंट्स आ गए कि पहले तो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो आप, आपको ये बताना है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस उनकी लाइफ कैसे सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ये देखो, ये बहुत अच्छी तरीके से कहाँ पे होता है पता है, टीवी से जो कमर्शियल होते हैं ना वीडियो की, पहले मैं बहुत मोटा था एंड स्टफ लाइक दैट। सो नाउ दे आर डूइंग एग्जैक्टली लाइक दैट, यू आर टेलिंग देम रीजंस कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, ओके। और लास्ट में क्या बोलते हैं, ये 24 घंटे के अंदर आप ऑर्डर करो या नेक्स्ट 1 घंटे पे ऑर्डर करोगे तो आपको प्रोडक्ट इतने प्राइस में मिलेगा। लास्ट इज एक्शन, हाउ डू यू कन्विंस देम टू टेक एक्शन। आपके इसमें एक्शन क्या हो सकती है, वहां पे आप बिग बोल्ड में आपका फोन नंबर लिख दो, आपका व्हाट्सएप का ये दे दो नंबर के, कॉलर्स ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक का मैसेंजर का विजेट डाल दो, जैसे मैंने दिया कि फ्री एडवाइस दे दो। तो देयर आर मल्टीपल वेज, एक नहीं 4-5 चीज हो सकती है जिससे आपको क्या चाहिए कि एक डायलॉग चालू हो जाए मेरे साथ, बस हाई बोल दे मेरे को, इतना इनफ है, उसके बाद मैं बाटल में उतार दूंगा वैसे। दैट्स व्हाट यू वांट, यू वांट वन समबडी टू कम टू योर स्टोर एंड से हेलो टू यू, वही आपका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज एक्शन। इट कैन बी as I mentioned, your phone numbering big and bold, and create something, a sense of urgency कि आप अभी करोगे तो इतना प्राइस, नहीं तो बाद में ये प्राइस, अगर आप दे सकते हो तो प्राइस रिवील कर सकते हो, तो नहीं तो करो अभी करोगे तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा वैसे। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी इज इम्पोर्टेंट। तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये फॉर्मूला यूज कर दिया आपने तो आपको डेफिनेटली आप अपना कंटेंट स्ट्रक्चर करके यू कैन बिकम सक्सेसफुल। Thank you very much, Shreyas, for that AIDA. I think it's a very good AIDA. I don't know if I should pronounce it. So idea बोल सकते हैं क्या? AIDA बोल सकते हैं maybe, right? AIDA बोल सकते हैं. So AIDA is something. AIDA 5 बार बोल दो. So every you are going to design any kind of marketing collateral. और ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल सिर्फ वेबसाइट पे या किधर नहीं, ये रेगुलर मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हैं. Shreyas, with your permission, I'd like to just share one example. हमारे पार्टनर हैं सिंगापुर में, जो हमारे लिए बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, इसका नाम है मार्टिन. ही इज ऑल्सो कंसल्टेंट, जो एग्जीबिशंस में स्टॉल को कैसे ऑपरेट किया जाता है, एक एग्जीबिशन स्टॉल को कैसे अच्छी तरह से ऑपरेट किया जा सकता है. ही इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट. सो यू नो व्हाट ही सेज इतना पैसा खर्च करते हैं लोग उसको ब्यूटिफिकेशन करने में, पर जो एक मैसेज है ना, वो मैसेज लिखना भूल जाते हैं. तो और यही चीज मेरे दिमाग में बार बार आते रहती है. अभी हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन माय फेसबुक ग्रुप? if you are on the Facebook group, just say thumbs up so that I know. On the Facebook group, say thumbs up so that I know. Okay, हमारे Facebook group पे ना एक वीडियो डाला हुआ है where I am doing like 1-to-1 coaching with somebody. I think so there is वहाँ पे, but anyways, अगर आप नहीं देखते हो तो वो देखिए वीडियोस, बिकॉज वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आएगी. तो एक आदमी है जो इन साउथ ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे पूछा था कि आई लॉस्ट बिजनेस. उनका बॉक्सेस बनाते हैं, पुट्ठे के बॉक्सेस बनाते हैं. उन्होंने बोला कि मेरा क्वालिटी इतना अच्छा है फिर भी आई लॉस्ट बिजनेस. और बिजनेस क्यों लूज कर दिया? क्योंकि वो टाइम पे पहुंचा नहीं पाए अपने कस्टमर को. तो मैंने उनको सबसे पहला सवाल पूछा कि आपके कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? तो बोलते कस्टमर ने तो मुझे बोला क्वालिटी इंपॉर्टेंट है. बोला नहीं, देखो, अगर कस्टमर के लिए सीरियसली क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता तो वो टाइम दे देता, पर जब क्वालिटी और टाइम दो में से किसी एक चीज की बात आई तो कस्टमर ने किस चीज को प्रायोरिटाइज किया? वक्त को प्रायोरिटाइज किया. तो अगर आप मार्केटिंग मैसेज बना रहे हो तो यू शुड नॉट राइट द बेस्ट क्वालिटी बॉक्सेस, बिकॉज वो नहीं चाहिए बंदे को. लोगों को क्या चाहिए? क्विक क्वालिटी बॉक्सेस. तो अगर आप लिखोगे कि इफ यू वांट अ बॉक्स टू बी सप्लाइड टू यू लास्ट मिनट, तो कम टू अस. अब ये मार्केटिंग मैसेज में आप कैसे ड्राफ्ट करते हो ना, दैट विल गेट यू द बिजनेस. सो द फंडामेंटल्स रिमेन द सेम, whether you do it online या offline. I think this AIDA is my takeaway from this session, Shreyas. I absolutely love that acronym और जो भी आपने उसके साथ suggest किया. So I'm going to tell you another question, Shreyas, for you is यहाँ पे हमारे पास एक mixed crowd है. You know, कोई ऐसे लोग हैं जो B2C environment में हैं, यानी कि retail products बेचते हैं.
और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो B2B इन्वायरमेंट में हैं, यानी वो किसी और बिजनेस को असिस्ट करते हैं, या तो बिजनेस को वो कंपोनेंट्स देते हैं या किसी बिजनेस के साथ काम करते हैं. एंड देयर आर सम पीपल हु आर लाइक इन द बिटवीन, जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, जो बिल्डर्स के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो बायर है उसके लिए भी सर्विस प्रोवाइडर है. तो जो B2B है और जो B2C है, ये दोनों के लिए डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलग होना चाहिए, और होना भी चाहिए या अलग, या सब सेम ही है? सबसे पहले ये हमेशा डिबेट हुआ करता था हमारे लिए पहले, बहुत पहले, बट नाउ वी हैव कम टू वन गुड आंसर. आप B2B में काम करो या B2C, आप लास्ट में इंसान के साथ काम कर रहा है, सो डोंट फॉरगेट दैट. तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एकदम कि हम लोग कोई भी तरह का बिजनेस करें, इवेंचुअली हम सामने वाले बिजनेस पर्सन के साथ या कॉन्टेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, तो दैट पर्सन इज जस्ट ह्यूमन लाइक एनी पर्सन, और उसका माइंड भी वैसे ही काम करेगा, चाहे वो अपना B2C कस्टमर हो या B2B. तो वो पहले डिबेट हम लोग एक कस्टमर को बोलते कि यस, उनको अप्रोच करने का तरीका अलग होता है डेफिनेटली, बट इवेंचुअली यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, तो प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ आपका मीडियम चेंज हो जाता है. ओके, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और बहुत कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है ये. आपको खुद आपको इट इज वेरी ऑब्वियस, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, पर ये डिफरेंशिएटर है. सबसे पहले आपका हाइजीन चेक होना चाहिए, आप B2C बिजनेस में हो या B2B में. विच मीन्स क्या, कि आपका खुद का फेसबुक पेज है, पर्सनल प्रोफाइल. ओके, मैं बता रहा हूँ कि कभी काम लगेगा. दिस ऑल विल बिकम यूजफुल व्हेन समबडी डूइंग बैकग्राउंड चेक आपका. ओके, फॉलो अप करेगा आपके लिए, आपके बारे में, तभी ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वहां पे आप मिस नहीं करना चाहोगे. आई विल गिव एन एग्जांपल. अगर समझो आपको कुछ रेफरेंस मिला कहीं से, तो आप क्या देखोगे कि बंदा सच्ची में है कि नहीं. सबसे पहले रियली इज दिस पर्सन एग्जिस्ट और नॉट, करेक्ट. तो सबसे पहले आपका अगर कंपनी का पेज हो, तो कीप दैट वेरी हाइजीनिक कंडीशन में. नहीं है तो बनाना चाहिए. बी देयर ऑन एटलीस्ट, अगर आप B2B में हो तो डेफिनेटली बी देयर ऑन लिंक्डइन, होना ही चाहिए. आप हाइब्रिड में हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होना. तो फेसबुक पे तो आप B2B में हो या B2C में हो, होना ही चाहिए. ओके, अगर आप B2C में भी हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ज़्यादा फोकस रखो आप. अगर आप सो बेसिकली लिंक्डइन इज फॉर B2B. अगर आप ज़्यादा बिजनेस से बिजनेस काम कर रहे हैं तो लिंक्डइन पे रहिए, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका फेसबुक का हाइजीन हमेशा रखिए, और आपका पर्सनल प्रोफाइल लिंक्डइन का भी हाइजीन हमेशा रखिए. सो क्रिएट अ पेज ऑल्सो, एंड जो कंपनी का पेज है वो भी बनाइए, आपका पर्सनल प्रोफाइल है वो भी अपडेट कीजिए. आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत टाइम से लॉगिन भी नहीं किया रहेगा, बहुत सारे अकाउंट के अंदर आप देखते भी नहीं हो. ओके, तो वो सब चीज आप हाइजीन फैक्टर का ध्यान रखिए. सबसे पहले द फर्स्ट रूल ऑफ मार्केटिंग, जब भी कोई आपको फॉलो अप करे आपके साथ, दे फाइंड एवरीथिंग ठीक ठाक. ओके, नंबर 2, B2C is more like Facebook and Insta are definitely more popular for B2C. B2B में again it's LinkedIn. Apart from that, other factor is how do you reach to B2B customers? So they are more responsive to newsletters and emailers, because वो लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे email चेक करते रहते हैं. नॉर्मल पीपल जो होते हैं कंज्यूमर्स, वो लोग ज्यादा ईमेल चेक नहीं करते, ये लोग फेसबुक फीड चेक करते हैं. तो न्यूज़लेटर मार्केटिंग इज अ वेरी एज अ फॉलो अप कैंपेन, वेरी गुड वे ऑफ. सो अगर आप B2B को टारगेट कर रहे हो तो कैप्चर एज मेनी ईमेल आईडी एज पॉसिबल. ओके, और फिर आप उसको गूगल एड्स से रीमार्केटिंग कर सकते हो. अभी वो बंदा ऑफिस में बैठा है या घर में बैठा है, उससे मतलब नहीं है. जब आप रीमार्केटिंग करते हो तो कहीं पे भी जाएगा वो आपकी एड देखेगा, भले वो फेसबुक पे अभी सोशल टाइम कर रहा है. इवन B2B गाय इज अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, एंड इज गोइंग टू गो बैक, और वो फेसबुक का फीड या इंस्टाग्राम फीड चेक करेगा. तो तभी अगर उसने आपके बारे में कभी सुना और फिर फेसबुक पे गया या इंस्टाग्राम पे गया, तो व्हेन दे सी योर एड अगेन, उसका फेथ बिल्ड हो जाएगा कि दिस पर्सन इज एक्टिव. तो रीमार्केटिंग के लिए आपकी सभी मीडियम को टारगेट करना चाहिए. फर्स्ट टाइम नहीं, फॉर गेटिंग द फुटफॉल आप लिंक्डइन यूज करो, या आप इंडिया मार्ट या जस्ट डायल या जो भी आपके पास मेथड्स है आप यूज कीजिए. बट आफ्टर द फुटफॉल हैपेंस, उसके लिए आपके लिए ये यू बी ऑन फेसबुक ऑल्सो और इंस्टा ऑल्सो और वेरेवर यू कैन बी, बिकॉज
एक ही चीज हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ब्लॉक मार्केटिंग। वो बंदे को आपके सिवाय कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, वो कहाँ पे भी जाए आपका बैनर उनको दिखना चाहिए। दे शुड बी ब्लाइंडेड बाय योर ब्रांड। ओके, तो वहां पे उसको इतना फेथ बैठ जाएगा कि नहीं ये बंदा परफेक्ट है, आई नीड टू डू बिजनेस। द ब्रांड रिकॉल, ऐसा कहते हैं कि आप, हार्दिक विल आल्सो टेल यू कि एक प्रोस्पेक्ट को कम से कम 7 बार इंटरेक्शन लगता है बिफोर दे डिसाइड टू गिव बिजनेस टू यू। बिकॉज 7 बार में वो हर टाइम अपना ये कर रहा है ना, ही इज ट्राइंग टू मेंटली चेकलिस्ट दे रहा है अपने को, हाँ ये बंदा करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट 7 बार उसके दिमाग में हाँ ये बड़ा परफेक्ट कंपनी है, उसके बाद वो आगे जाएगा। तो यू हैव टू लीव अ फुटप्रिंट एवरीवेयर। आपका पर्सनल प्रोफाइल हाइजीनिक रखो, आपका सोशल मीडिया पेजेस हाइजीनिक रखो, आपकी वेबसाइट है तो उसको अपडेट रखो। मालूम पड़ा कि लास्ट पोस्ट था 4 साल पहले, निकाल दो, लगेगा कि बंदा आउट ऑफ बिजनेस है। डोंट हैव ओल्ड कंटेंट। डोंट, अगर आप फेसबुक पेज बना रहे हो तो ऐसा मत करना कि एक दिवाली में हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया या कोई पोस्टर डाल दिया। सो इफ यू आर चूजिंग टू क्रिएट इट, मेक इट रेलेवेंट, उसको हेल्दी रखिए। ओके, अगर नहीं हो रहा है मैनेज तो मत बनाइए। बिकॉज द वर्स्ट थिंग, ऐसे बोलते ना, इन द वर्स्ट थिंग टू नो इंटरनेट इज स्लो इंटरनेट। उसी तरीके से अगर आपने पेज बनाया और अंदर कुछ कंटेंट नहीं डाला ना, तो वो थोड़ा बहुत जो बिल्डअप हो रहेगा ना 6 प्लस वो पूरा -10 मिल जाएगा आपको। तो डोंट हैव अ डेड प्रॉपर्टी ऑनलाइन। इट मीन्स उनको लग रहा है कि आप अपने बिजनेस का ध्यान नहीं रख रहे हो, और अगर आप अपने बिजनेस का ध्यान नहीं रख रहे हो तो मेरे बिजनेस का ध्यान कैसे रखोगे? दैट्स अ साइकोलॉजी, सो डोंट डू दैट। Shreya, so I have 3 questions for you now. हम लोग एक हमारा एक क्लोज नेट कम्युनिटी है जिसको हम बोलते हैं प्रोपेल बोर्ड। ये कम्युनिटी में देयर आर एंटरप्रेन्योर्स हु आर लाइक फास्ट मूवर्स, जो रुकते नहीं हैं, दे रियली वांट टू एक्शन, गो गेटर्स हैं। एंड ये कम्युनिटी हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं। ये कम्युनिटी से मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस है विच आई वांट टू आस्क यू। पहला क्वेश्चन है प्रज्ञा सबने से। उन्होंने पूछा है, एज आई एम इन रियल एस्टेट सेक्टर एंड साइट्स लाइक मैजिक ब्रिक्स, 99 acres आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्लाइंट्स प्रेफर टू गो टू दीज साइट्स रादर देन इंडिविजुअल वेबसाइट्स ऑफ रियल्टर्स, मतलब ब्रोकर हैं बेसिकली। Then does it make sense in spending time and money on creating material or individual websites? As I do have a standard website currently purchased from CRM provider, and all the details of the domain are with them. Domain is expiring next one, so should I continue existing website with CRM company or create my own website? थोड़ा सा और मैं इस पे बताना चाहता हूँ श्रेयस, because I know the real estate broking market well. There is a company called Realty Redefined. ये कंपनी अपने CRM के साथ अब एक वेबसाइट खुद बना के देती है, एंड दैट्स द वेबसाइट दैट आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट. Pradnya, if you're here on this call, then just let us know if what I said is right and if that's the kind of website. Yeah, over to you, Shreya. Yes, Pradnya just responded. Yes. Okay. So are you so just your broker and agent, right? Who puts property online, right? Yeah. Something like this. Okay. आपके एक बार कांटेक्ट बन जाते हैं. Suppose this is what I understand about reality. Correct me if wrong, and I'm not sure my answer will be 100% accurate because I'm not fully well versed. But this is a general common sense answer. आपको लीड आती रहेगी एक बार किसी के थ्रू, तो राइट. अभी मैजिक लिस्ट में इंक्वायरी डाली तो आपको लीड तो मिलती रहेगी. I think you can go on, Shreyas. You can go on. We may not have responses coming quickly. ओके, जब भी आपको लीड मिलती है तो आपको उनका नेम और मोबाइल नंबर शायद मिलता रहेगा. ओके, use that and create your database, and then using your own website you can reach out to them often. So maybe website is again trust building, because I'm sure कि अगर 4 लिस्टिंग है तो every listing is by a different service provider, agent ABC XYZ, और बाद में लिखा भी रहता है ना कि so many properties sold and something like that, बराबर. पर उनको भी एजेंट के ऊपर ट्रस्ट कैसे आएगा फाइनली? तो वन इज कि वो जब भी आपका वहां पे रेटिंग पढ़ेंगे कि आपने कितना किया है, एंड if they want to be double sure, because if they are buying an expensive property, right, they will want to double check everything about genuinity of the person, the broker, agent and everything. तभी सब opportunity है that you can keep your profile or your website up to date and healthy. And then that's why I say again, digital marketing is not just about website, it's about gathering these email IDs and
the mobile numbers and be in touch with them in your drip campaign. अभी मैजिक बिक्स में क्या होता है कि अगर मैंने सर्च किया प्रॉपर्टी इन 3 BHK इन साउथ मुंबई, तो मेरे को फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली, न्यू प्रॉपर्टी आपके एरिया में लिस्ट हुई है करके, राइट? पर आप खुद भी ये कर सकते हो ना, व्हाई टू वेट ऑन, बिकॉज मैजिक बिक्स वाला जो प्रॉपर्टी देगा उसमें आपकी लिस्ट प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी। तो आप खुद के कस्टमर को, बिकॉज वो एक दिन में तो कोई कस्टमर कुछ लेने नहीं वाला है, कम से कम 6 महीना या 1 साल लेगा बाइंग डिसीजंस के अंदर मोस्टली। तो आप अपना डेटाबेस क्रिएट करके आप उनको फॉलो अप करिए कीजिए कि देखो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, एंड बी इन कांस्टेंट कांटेक्ट विथ योर पीपल। आई एम श्योर हम लोग सब है ना, वी आर वेरी पुअर इन फॉलो अप्स। ओके, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लूज बिजनेस बिकॉज वो लोग इंक्वायरी को छोड़ देते हाफ वे because they are focusing on completion of some things at hand, right? But डिजिटल मार्केटिंग के अगर आपने अपना सिस्टमेटिक ईमेल न्यूज़लेटर सिस्टम बनाया तो आप उनको वीकली डेफिनेटली फॉलो अप कर सकते हैं। जो आप डेटा पोस्ट कॉपी पेस्ट करके मैजिक बिक्स में डाल रहे हो, वैसा ही लिस्टिंग आप खुद की वेबसाइट के लिए भी कर सकते हो। सो यू कैन, जब भी आप मैजिक बिक्स पे आपने कोई डाला प्रॉपर्टी, इमीडिएटली आप वो प्रॉपर्टी अपने वेबसाइट पे डालो। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे आपको कुछ पे करना पड़ता है टू बी गोल्ड स्पॉन्सर, प्रीमियम स्पॉन्सर, कि आपकी प्रॉपर्टी ऊपर दिख के आए, राइट? अदरवाइज सेकंड पेज पे आप बहुत नीचे आएगी। पर आपकी वेबसाइट पे तो आप आपकी बेस्ट प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो जो मोर, तो एक वर्ड मैंने नोट्स में लिखा था कि बाकी सब प्रॉपर्टी है ना वो दूसरे की है, यूट्यूब आपका नहीं, फेसबुक आपका नहीं, ये मैजिक बिक्स आपका नहीं, अमेजोन भी आपका नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। अपनी एक ही चीज है, अपना खुद का वेबसाइट। तो उसको जितना, अभी आप सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर जो लोग रिटेल करते रहेंगे, अमेजोन मिंत्रा के रूल्स बहुत टफ है, एटलीस्ट मिंत्रा के तो रूल्स बहुत टफ है, फोटो ऐसा ही होना चाहिए, ये क्वालिटी का होना चाहिए। रिफंड में भी उनका प्रॉब्लम होता है कि पैसा कट जाएगा, रिफंड काट के देंगे, एंड यू लूज लॉट ऑफ मनी बट यू गेट ऑर्डर्स, नो डाउट। कंपेयर दिस कि अगर यही सेल आपकी वेबसाइट पे होता तो यू वुड हैव बीन एबल टू गिव मैक्सिमम मनी। तो यही क्वेश्चन है कि खुद की प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। डोंट यूज रेंटेड प्रॉपर्टी ऑल द टाइम, कभी नोटिस आएगा कि बंद हो जाओ, वी डोंट नो। सो डोंट डिपेंड ऑन अदर प्रॉपर्टीज, लेट योर फोकस ऑलवेज ऑल्सो बी ऑन योर ओन प्रॉपर्टी। आप रेंटल घर में ज्यादा रिनोवेशन नहीं कर सकते हो, खुद के घर में कुछ भी कर सकते हो। सो वेबसाइट इज योर ओन प्रॉपर्टी, and people have more faith when you have your own website. Thank you very much, Shreyas. Guys, for anybody who's, ये जो प्रज्ञा का क्वेश्चन था, अगर ये ऐसी वेबसाइट्स पे आप लिस्टेड हो जिसको मार्केट प्लेसेस बोलते हैं, तो वो अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। बट आपका खुद का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल विल रिकॉग्नाइज यू एज समबडी हु इज डिफरेंट देन द अदर्स इन द मार्केट। एक स्टोरी मेरे को याद आ रही है, इसमें अगर 2 मिनट लेके मैं आपको बताऊंगा। दो आदमी जंगल में जा रहे थे और एक शेर आ गया, ओके, और दोनों को शेर की दहाड़ सुनाई दी। तो एक बंदा बोलता है मैं भागता हूं, तो दूसरे बंदे ने उसको बोला अबे बेवकूफ आदमी, अगर तू भागेगा तो तुझे लगता है तू शेर से फास्ट भाग पाएगा? तो बोलता है तू बेवकूफ, मेरे को तो सिर्फ तुझसे फास्ट भागना है। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सो समटाइम्स just standing out from your competition is good enough. अगर वो बंदे से ज्यादा तेज भाग गया तो भी वो पकड़ लेगा। Second, Pradnya, specifically for you, I'm sure you know Ram, right? Now this guy has been my client जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। He's a amazingly superb social media presence है उस बंदे का। He's been my client, so I can tell you. उसका बहुत शानदार ऑफिस है। मैंने उनको पूछा था कि ये इतना ऑफिस का खर्चा क्यों फॉर अ ब्रोकिंग कंपनी, क्यों? मतलब रियल एस्टेट ब्रोकर तो उनके ऑफिस इतने शानदार नहीं होते, पर आपका ऑफिस इतना शानदार क्यों है? सो ही सेड दिस एंड इट स्टेज विथ मी। उन्होंने बोला था कि जब मेरे ऑफिस में कोई पैर रखेगा तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरा टेस्ट ऑफ रियल एस्टेट क्या है। अगर मेरा टेस्ट ऑफ रियल एस्टेट ऐसा है तो सोचो आपके लिए मैं क्या ढूंढूंगा। नाउ दिस अ वेरी बिग पावरफुल स्टेटमेंट। तो आप अलग कैसे हो ये बताने के लिए आपका अलग एक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, इज व्हाट माय टेक इज आल्सो। तो प्रज्ञा, बट आई वुड नॉट सजेस्ट, अगर रियलिटी रीडिफाइंड आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ऑन क्रिएटिविटी, देन गो विद समथिंग एल्स। बट
you go with the website. That's I think the common answer. Shreya's second question that I have, this is again from one of my board members. His name is Mufaddal. And he says, I have been doing Google SEO last month, hoping that many people would be online searching for products I deal. He deals in door hardware and furniture fittings. Not because they have immediate need of it, but because the end user or architect, interior designers would use this time for sourcing, resourcing, and studying the products available in the market. The ranks have gone up slightly, but the hits have gone down. Means not many people are checking these products right now. Should I still continue doing the SEO or wait till the requirements start coming in from an interior के sites जो हैं वो वापस से चालू हो जाए? So should we do? I know you have a very different take on SEO, and I think it will be very nice to know that. Very good question. And SEO is a fundamental that should be looked most seriously, or it's something you must always carry on. You should never stop. Okay. Number one. Question ये है कि how much are you paying for it and how much return are you getting? Okay. I'll answer this question. आप check भी कर सकते हो. मेरा एक client है ilwindia.com. I know him since 8 years. और वो बंदा what he did, उसने अपने आप को 28 दिन के लिए रूम में बंद कर दिया और 700 पेजेस बनाए, 700 पेजेस. ओके. कैसे? स्टडी इन यूएस, स्टडी बीएससी इन यूएस, स्टडी एमएससी इन यूएस, स्टडी पीएचडी इन यूएस. तो जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे ना, उसने सबके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा, ढूंढ के सर्च कॉपी पेस्ट करके किया. Now he made a website of 700 pages and now he comes on number 1, 2, 3, 4. Okay, for most of the keywords, and he doesn't have to spend any money on marketing. तो उसको पूरा बिजनेस सिर्फ SEO से मिलता है. नंबर 1. बट उसको कितना टाइम लगा ये करने के लिए? He has built it continuously over the period of years. नंबर 1. यहाँ पे क्या चीज़ है? Where you stand, as you mentioned, कि अगर आपकी immediate requirement है, SEO will not give you results. Okay, it's a strategy. ऐसा है ना कि it's like eating food. You eat every day. You need it. जैसे SEO is something you need always, and you must continue doing it. Because over a period of time, आपकी ranking बढ़ती ही जाएगी definitely. Okay, if you're alert. So that is something. और अगर आपका product range भी ज़्यादा नहीं है और कम है, तो आपको और easy होगा because you can focus on 3 to 5 keywords main. Okay, so आप कौन से पेज पे हो अभी वो भी डिटरमाइन करता है. अगर आप सेकेंड पेज पे हो और फर्स्ट पेज के बॉटम पे हो और थोड़ा एफर्ट डाला तो आप फर्स्ट में आ जाएंगे, तो यू मस्ट डेफिनेटली कंटिन्यू. बट इफ यू ऑन पेज नंबर 5, ओके, एंड देन यू एक्सपेक्टेड टू कम ऑन पेज नंबर 1, दैट इज डिफिकल्ट. और ऊपर से अगेन इट्स अबाउट नीड्स कि जहाँ पे गूगल एड्स आ जाते हैं कि वी बाईपास SEO बिकॉज क्या हो जाता है कि लॉट ऑफ कस्टमर्स डोंट हैव पेशेंस. पैसा स्पेंड किया, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए. So they will, as Hardik mentioned, it's like SEO is like planting a mango tree. You'll get result and you'll benefit a lot, but a time will come. But a lot of people, अभी कैसा है business में, everybody wants immediate sales. So SEO is not a solution for that. Okay, suppose if your marketing budget, if your 90% is on your getting immediate customer, then you can spend 5-10% on SEO. But don't keep 30-40% of your budget for SEO right now. Thank you very much, Shreya. Just to revert this, what you do is this is what we suggest our customer, and I told even Hardik this, कि आप ads run कीजिए. अगर ads से, अगर देखो क्या है, ट्रैफिक कहाँ से आएगा? वेबसाइट से आया, बराबर. आपको तो ट्रैफिक से मतलब है ना, अभी SEO से आए या PPC से आए, बराबर. अगर SEO का बंदा आपको 15-20 हज़ार चार्ज कर रहा है हर महीने का, आप स्पेंड करोगे 1,20,000 whatever in that period. पर आपने उतना ही और आपको 6-7 महीने के बाद रिजल्ट दिखेगा. कंपेयर दिस विद द गूगल एड. आपने आज स्पेंड किया पैसा, उसी दिन आपको कस्टमर मिलेगा, राइट? तो व्हाई टू वेट फॉर 6 months? और एक बार कस्टमर मिलते रहे आपको कंटिन्यूसली यूजिंग एड, देन वो पैसे से आप यू सेट असाइड अ बजट एंड देन यू इन्वेस्ट इन SEO because SEO is a long term strategy, not for your immediate goals. Okay, thank you very much. So Shreyas, what you are suggesting is कि अगर आपको immediate customers चाहिए, then the faster strategy is go for ads, get customers, earn money, and then have a budget जो consistently SEO आपको long term के लिए करने के लिए help रहेगा. Am I right? That's correct. Great.
So I have third and the last question for you, Shreyas. This is again from my board member because my question सिर्फ board members के ले रहा हूँ. His name is Zubin. Zubin, are you there? If you're there, just raise your hand and or put it in the comment that you're there so that we know you're there. Okay, Zubin is there. I just searched for him. Okay, so Zubin का question ये है, and he's put it in the chat box already. That ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज के लिए हमको एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इन हाउस रखने की जरूरत है क्या? Not necessary. Because उतना काम किसी भी कंपनी के पास नहीं रहता कि they need a full time resource. Because एक चीज है, देखो, you are paying for the resource also, the salary, and you will have to pay for the getting the stuff done जो एक पर्सन की स्किल नहीं होती. अगर एक लैंडिंग पेज बनाना है फॉर एग्जांपल या क्रिएटिव बनाना है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल वो लोग कोर्स कर लेते हैं, दिस कॉल देमसेल्फ डिजिटल मार्केटिंग, बट दे डोंट हैव वैरायटी ऑफ स्किल्स. उसके लिए फोटोशॉप की स्किल लगती है, यानी क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनिंग की, कॉपी राइटिंग की स्किल लगती है, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की स्किल लगती है, डोमेन मैपिंग. तो देयर इज प्लेथरा ऑफ स्किल दैट इज रिक्वायर्ड जो एक बंदे में नहीं होता. सेकेंडली, वो मिल भी गया बंदा आपको, तो you will not have 160 hours of work for that person. आपका 24 घंटे में आपकी पूरे महीने का काम हो सकता है, उतना स्कोप रहेगा. तो what will the person do for remaining time? आप क्या करते हो कि अगर आपके पास कोई सीनियर पर्सन है या कोई एस्टेब्लिश पर्सन है, उसकी प्रोफाइल आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट a new person just for this will be very expensive. Okay, Zubin का एक follow up question आया है right now. And I'm just reading that. I'm talking about who will handle the social media team. So Zubin, I'm assuming you're asking if you have a social media team in-house, right? Okay, so I think he's thinking on social media team. मतलब he's still thinking के social media handles वगैरह जो हैं, Facebook है, LinkedIn है, etc. वो टीम को हैंडल कोई एक्सटर्नल एजेंसी करेगा या नहीं करेगा. I think that's what his question is. Ashok Shirur is also suggesting the same thing. He's saying कोई स्पॉक जो है सोशल मीडिया को वो कौन हैंडल करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल when you are working with me, of course it's you, me and Dhananjay who interacts at a regular level, right? के ads में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए. So I think that's what the question is. Can I answer that? Because I think can I answer that, Shreyas? Sure, go ahead. So Ashok ji, if in fact anybody who has this question, देखिए पहला point which Shreyas touched upon is research. अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका कस्टमर क्या सुनने से एक्साइट होता है, यू लॉस्ट द बैटल देयर. कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा सोशल मीडिया एजेंसी आपको हैंडल नहीं कर सकता है, एब्सोल्युटली नहीं कर सकता है. सो यू नीड टू नो व्हाट इज इट दैट योर कस्टमर लाइक्स टू लिसन टू, बिकॉज दैट मैसेज इज व्हाट नीड्स टू गेट कम्युनिकेटेड. वेदर आप एड से करो, पोस्ट से करो, ईमेल से करो, जो ड्रिप ईमेल्स की बात हमने की, लैंडिंग पेज बना, उसका कंटेंट, इट नीड्स टू गो थ्रू दैट. सो to answer who is supposed to be the Spock handling this, well, it's only supposed to be somebody in your organization who knows the customer the best. And if nobody knows the customer best, then you should know it, because खुद के मरे बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते. ओके, खुद को स्वर्ग जाना है तो आपको ही मरना पड़ेगा. हमेशा किधर और बंदूक रख के बंदूक नहीं चला सकते हो. अगर वो बंदे को इतना अक्ल होता तो वो आपके जैसा बिजनेस लेके खड़ा होता, और अगर वो खड़ा नहीं है आपके जैसा बिजनेस लेके, तो जरा सोचो, दैट ऑलरेडी मीन्स दैट उसके पास उतना नॉलेज नहीं है. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी पुटिंग समबडी हु इज लेसर स्किल्ड टू डू अ जॉब व्हिच इज वेरी वेरी गुड. जुबिन एक और सवाल पूछ रहा है. जुबिन, आई एम गोइंग टू आंसर दिस, बट आई थिंक वी विल हैव टू एंड इट हियर. Okay, so we need a Spock or be Spock myself. Yes, Zubin, I would suggest don't think of a Spock. This is a more strategy decision. You should think of who is the best person between you, your sister, or anybody who's there in your family who's running the business, who understands the customer the best.
मतलब कस्टमर को मैं ये बोलूंगा तो वो समझेगा. That is the person that should be coordinating with the social media team, because social media team, जैसे assuming श्रेयास का एजेंसी है या any other agency, they are technical in nature. ये आइडा वगैरह जो हमने डिस्कस किया ना, वो फ्रेमवर्क में डालेंगे, बट क्या डालना है ना, उसका इंग्रेडिएंट शुड कम फ्रॉम द पर्सन हु नोज द कस्टमर बेस्ट. So thank you very much, Shreyas. I think I still have lots of questions that I would love to ask you, and we can go on for the entire night and still not get finished. But I will like to conclude it here, because I'm sure, and the questions will never end, whether it is from me or from anybody else. I hope everybody likes this session and this session was value adding. If yes, just put claps so that Shreyas would know and we would understand if we have to do such sessions even going forward. Like I always say, thank you very much, guys. Shreyas, everybody loved your session. Thank you very much for that. Guys, एक last aspect मैं बोलना चाहता हूँ. You attending and spending this 8 or whatever 2 hours of your time or 1 hour of your time on this webinar, it is not going to help you. It is not going to help you. ये 2 घंटे में you just tasted something. अभी उसको चबाओगे नहीं, उसको डाइजेस्ट नहीं करोगे, इन द सेंस एक्शन नहीं करोगे, देन ये 2 घंटे आपने बर्बाद कर दिए. इससे तो बेटर था 2 घंटे आप लूडो खेलो, because that is far better than consuming information and doing nothing. That is why intelligent people who read books and just do nothing after that are as stupid as somebody who's not read a book. So with this thought, I will encourage you guys to take efforts, go ahead, action things, come back to webinars like this, ask me questions. I will arrange for people who you are asking for. The next session, I think one session got cancelled in the webinar. So there we are looking for people who can answer this. Market kahan se kare. There is a lot of things that are going on India becoming a country which is self-reliant. उस पर मजाक भी चल रहा है कि सब लोग अपना अपना देख लो टाइप. But yeah, self-reliant, यहाँ से हम बाहर export करें, etc. So that's another topic that is buzzing in our head, and I think all of you can benefit from there. So we are looking for experts who can help us. Our experts not necessarily are trainers. In fact, they are not trainers. I am not a trainer myself. अगर अच्छा लगता है आपको, then that's my luck, and I'm very happy for that. But हमारे जो भी experts मैं लाने की कोशिश करूंगा are going to be technical guys who are going to be experts at doing it. जो बोल बच्चन नहीं चाहिए हमको असल में करने वाला अमिताभ बच्चन चाहिए. So those are the kind of guys that I will bring into this webinar. If you like this webinar, do give a thumbs up to other recordings that we've done. Become a part of the Facebook group that we have if you are not already a part of it. If you want to ask questions to these experts, you can become a part of the Propel board. And that's where the action really takes place. If you've not already been a part of Propel board, you should try and do that. There are other WhatsApp groups also that you can become a part of. Fauziya, if I can ask you to put the WhatsApp group and the link for the Facebook group. Facebook and WhatsApp is free for all. You can come there, engage, listen to the podcast that I create. By the way, how many of you are listening to the podcast? Anybody here who's listening to my podcast? I'm sharing my life story out, guys. Good. I hope you're enjoying that. उसमें मैं सिर्फ मेरे दिल की बात रख रहा हूँ. If some of you like it, spread the word, let everybody else enjoy. If you've not heard them, go on to my Facebook page, hear them. कोई charge नहीं है उसका. I just want to give it to you guys. Propel board is a charged exercise. So if you want to buy into Propel board, अगर आपको अच्छा लगता है, मैंने जो भी बोला वो सुनना अच्छा लगता है, and you want to hear more of me, you want me to answer your questions on a regular basis and guide you through the journey out of this stupid and really sad COVID-19 situation. If you want me to be partnering with you, then let me tell you, it's not going to be me alone. It's going to be a team of people who are going to partner with you. So if you want to go for Propel board, Fauziya, can you put the numbers there so that people can reach out? अगर आप Propel board का हिस्सा होना चाहते हो, then you can reach out on that number that Fauziya is going to put up right now, and we will be happy to explain you what that is, how that is done,
and see you on the other side. So with that, keep actioning, keep improving your business, and keep propelling. Thank you very much, Shreyas. Appreciate your time. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Shreyas. Guys, I'm putting down the numbers that you all can reach out to inquire for the Propel board. It comes right here as I'm keying in. Sorry, I don't. So you can either reach out to Rohan or me. These are our numbers to inquire for the Propel board. And of course, there are the links that I have just pasted for the Facebook group, Facebook page to follow us, and the WhatsApp groups. You could join any of one of these if you all want to be connected for ongoing question and answers. Thank you again, everybody. Thank you so much, Shreyas. It was a fabulous session. Thank you, Hardik. Thank you, everyone. Have a good night. Bye. Keep propelling.